اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، سچائی بتا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہو تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک اور گھٹیا خبر اس وقت اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کی بدماشی شروع ہو چکی ہے اور دینی مدرسوں کا سروے شروع کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ کل دیوبند کے دارالعلوم زکریا کا سروے ہوا، معائنہ ہوا۔ مسلم پرسنل بورڈ نے اس کارروائی کو، یعنی سروے کی کارروائی کو، مدارس کو بدنام کرنے اور مشکوک بنانے کی ناپاک، گھٹیا اور نیچ سازش قرار دیا۔ 18 ستمبر کو دارالعلوم دیوبند کے اجلاس میں اب صورتحال پر غور و خوض ہوگا۔ اسکرین پر آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں، ایک سرکاری ادھیکاری ہے جو علماء سے پوچھ گچھ کر رہا ہے، وہ دیوبند میں موجود دارالعلوم زکریا کے سروے کی ایک تصویر ہے۔ حضرت مولانا محمود مدنی نے بھی کہا ہے کہ سرکاری اسکولز کا سروے کیوں نہیں؟ ایکچوئل میں سچ بات یہی ہے کہ اگر آپ کو تعلیم یا ایجوکیشن میں کمی نظر آ رہی ہے، سسٹم میں کمی نظر آ رہی ہے، تو ڈھیر ساری کمی تو سرکاری اسکول سے بھی ملے گی، جہاں پر کاغذوں پر ٹیچر بھی ہے اور کاغذوں پر کالج اور اسکول بھی چل رہے ہیں اور ڈھیر ساری بدعنوانیاں اور کرپشن ہے۔ تو مدرسوں کا سروے ہی کیوں؟ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ سرکاری اسکولز کا سروے کیوں نہیں؟ مدارس کا سروے کا مطلب ہی کھلا کھلا ہے کہ یوگی ماحول کو خراب کر کے 2024 میں بی جے پی الیکشن جیتنا چاہتی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے سیدھا سوال یہ بھی کیا کہ بھائی حکومت کا پیسہ تو اسکولوں میں جاتا ہے، تو جہاں 100% تمہارا روپیہ پیسہ حکومت کا لگتا ہے وہاں کا سروے کرو نا کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ مدرسے تو ہم تمہاری بھیک پر نہیں چلاتے ہیں۔
नाज़रीन, ऐसी दूसरी बड़ी खबर आ रही है ज्ञान वापी मस्जिद मुकदमे को लेकर। जी हाँ, आज ज्ञान वापी मस्जिद मुकदमे का फैसला होगा, इसलिए वाराणसी में, बनारस में सख्त सिक्योरिटी लगा दी गई है। दफा 144 नाफिज कर दी गई और जितने सेंसिटिव एरियाज है, हसास इलाके हैं, वहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च भी हुआ है। वाराणसी की जिला अदालत आज फैसला सुनाएगी कि यह मुकदमा आगे चलने के लायक है या नहीं। और ये एक हसास मसला है, इसलिए सिक्योरिटी सख्त बढ़ा दी गई है। यहां तक माना जा रहा है कि बॉर्डर पर चेकिंग और अलर्ट बढ़ा दिया गया। इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट ने होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला में भी चेकिंग मुहिम चलाई है और सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इस वक्त श्रीनगर से हमारे रिपोर्टर मौलाना हबीबुर रहमान ने बताया कि इस वक्त गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि दफा 370 को अब बहाल नहीं किया जा सकता। मैं इस ताल्लुक से लोगों को गुमराह नहीं करूंगा। यानी गुलाम नबी आजाद ने क्लियर कर दिया कि दफा 370 को अब बहाल नहीं किया जा सकता। इस पर सियासत करने वालों की तरफ भी उसने इशारा कर दिया, गोया कि ये होने वाला मसला, हल होने वाला मसला नहीं है। और गुलाम नबी आजाद ने 10 दिन के अंदर अंदर अपनी राजनीतिक पार्टी, सियासी पार्टी के क़याम का ऐलान भी कर दिया है कि 10 दिनों के अंदर अंदर हमारी अपनी पार्टी के क़याम का ऐलान हो जाएगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जी हाँ, गुज़िश्ता कल 5वां दिन था। केरला की बॉर्डर पर, सरहद पर शानदार अंदाज में राहुल गांधी का जोरदार इस्तकबाल, स्वागत किया गया और ढोल की थाप पर रक्स भी नजर आया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का काफिला गुज़िश्ता कल जब केरला की सरहद पर वाक़े पारसाला पहुंचा तो यहां उनका जोरदार अंदाज में इस्तकबाल किया गया। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी बौखला गई है और अलग अलग अंदाज में बाकायदा बीजेपी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जनाब नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है राहुल की कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा से। और नाना पटोले जी ने कहा कि राहुल गांधी को बदनाम करने वाले अब सदमे में हैं, क्योंकि इस भारत जोड़ो यात्रा को और राहुल गांधी को अवाम की जानिब से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, जिसे देखकर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। आइए, एक चौंकाने वाली खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, सत्यपाल मलिक जो फिलहाल मेघालय के गवर्नर है, लेकिन अपने बेबाक अंदाज से वो जाने जाते हैं और गवर्नर की पद पर रहने के बावजूद भी वो मरकजी सरकार यानी मोदी सरकार भाजपा को बख्शते नहीं हैं। इस वक्त उनके एक बयान ने बड़ी खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा कि मुझे लालच दी गई थी कि अगर हमारे खिलाफ न बोलोगे, यानी बीजेपी के खिलाफ न बोलोगे, तो फिर मुझे लालच दी गई थी कि मुझे नायब सदर बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर मेरा कहना ठीक नहीं, लेकिन मुझे इशारे मिले थे कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको नायब सदर बना देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जो महसूस करता हूं वो जरूर बोलता हूं। एक्चुअल में यह खबर इस वक्त इसलिए भी अहम है कि बीजेपी किसी को बड़े ओहदे का लालच देती है, कोई एमएलए है तो उसको मंत्री पद का लालच देती है, यानी लालच पहले देती है, नहीं माना तो उसके पीछे ईडी या सीबीआई को लगा देती है और किसी भी तरीके से नीच और घटिया हरकत करके अलग अलग स्टेट में बीजेपी जीती हुई सरकारों को गिराने का नीच और घटिया काम कर रही है। यही वजह है कि आसाम में भी एक कांग्रेस के बड़े कदावर नेता थे कमरुल इस्लाम चौधरी, उन्होंने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया, खैर बात कह दिया। तो लोग यही कह रहे हैं कि हर जगह बीजेपी या तो लालच दे रही है या फिर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर धमकाकर गोद में बिठा रही है। तो आसाम से भी कमरुल इस्लाम चौधरी के कांग्रेस छोड़ने को लेकर लोग यही बातें कर रहे हैं।
आइए इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के महाड़ से यानी कोकन से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त बीजेपी जो हरकत कर रही है मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाना, और बीजेपी की ये घटिया हरकत भी सामने आ रही है कि बीजेपी किसी भी तरीके से संविधान को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें लगातार कर रही है, क्योंकि बीजेपी के आका चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र जल्द अज जल्द घोषित कर दिया जाए, जो सपना उनका ख्वाब में भी कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन खैर, आइए इसी को लेकर यानी मुल्क को हिंदू राष्ट्र की बनाने की जो कोशिश की जा रही है, इसी को लेकर अब बाकायदा मुल्क के कुछ सच्चे वफादार पूरे मुल्क में आवाज उठा रहे हैं हिंदू राष्ट्र के खिलाफ विरोध में। महाड़ में भी बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सुषमा अंधारे ने सनसनीखेज इल्जाम लगाते हुए बीजेपी पर यह के ताल्लुक से कहा कि बीजेपी संविधान को पैरों तले रौंद रही है। वहीं पर हुसैन दलवाई जो कदावर नेता है, उन्होंने कहा कि मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है, और इस वक्त महाड़ से संविधान सुरक्षा आंदोलन का आगाज हो चुका है। यानी अब कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान की सुरक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है अपने संघी आकाओं के इशारे पर। रिमोट कंट्रोल की तरह मोदी जी और बीजेपी काम कर रहे हैं। इस तरीके से अब सीधा इल्जाम लगा है, और कुछ लोग बाकायदा यूनिट बनाकर, संगठन बनाकर, तहरीक के तंजीमें और फाउंडेशन बनाकर संविधान को बचाने के लिए और मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनने से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। संविधान सुरक्षा आंदोलन का महाराष्ट्र के महाड़ यानी कोकन से आगाज हो चुका है। जो प्रोग्राम कोकन में हुआ है, इस प्रोग्राम में कोकन की बेशतर तंजीमों के नुमाइंदों को भी बुलाया गया था, और ये आंदोलन, ये एहतजाज, ये कॉन्फ्रेंस, कोकन रीजनल कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब रही। इस वक्त एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है जिसने पूरे यूँ समझिए कि सियासी तौर पर हलचल मचा दी और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी हलचल मच गई है। वो खबर ये है कि सामना, आप जानते हैं कि शिवसेना का एक बड़ा तर्जुमान है, पेपर है, सामना ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि शरद पवार ने गोधरा फसादात में अमित शाह को जमानत दिलाई थी। यानी अमित शाह जो आज मुल्क का गृह मंत्री बन गया, अगर उस वक्त शरद पवार इसकी मदद ना करते और इसको जमानत ना दिलाते, तो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये तड़ीपार आज मुल्क का गृह मंत्री न बनता और मुल्क में तबाही न मचाता। ऐसा लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं। सामना ने यह दावा किया है कि अमित शाह को जमानत दिलाने वाले शरद पवार। तो इसको लेकर जैसे ही सामना में ये बात कही गई तो महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रफुल्ल पटेल ने इसे बिल्कुल झूठा, बेबुनियाद और मन गढ़ंत इल्जाम ठहराया है, लेकिन यह बात सामने आने के बाद कहीं न कहीं इसकी खोज में लोग लग गए हैं कि अमित शाह जो आज गृह मंत्री बन गया है, तो क्या अगर शरद पवार उसे उस वक्त जमानत न दिलाते तो मुल्क तबाही की तरफ न जाता। लोग ऐसी बातें करके खोज में लग गए हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी और शरद पवार के लिए भी चिंताजनक है। वहीं पर खबरें ये भी आ रही है शरद पवार को लेकर कि शरद पवार एक बार फिर एनसीपी के अध्यक्ष सदर मुंतखब हो गए हैं और पार्टी ने वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं बनाने को भी क्लियर कर दिया कि पार्टी की तरफ से वजीर आजम के उम्मीदवार के चेहरे के लिए शरद पवार नहीं रहेंगे। इस वक्त मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि गुज़िश्ता कल दादर और प्रभा देवी में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे इनके समर्थकों के दरमियान जोरदार झड़प हुई, हवाई फायरिंग तक हुई। महेश सावंत समेत तकरीबन 30 लोगों पर वजीर आला के करीबी संतोष पर हमला करने का इल्जाम लगाया गया है। पुलिस स्टेशन में शिवसेना के एमपी सावंत, ऐसी अंबदास दानवे और अनिल प्रभ भी पहुंच गए। दोनों ग्रुपों में जबरदस्त झड़प होने की खबरें आ रही है। वहीं पर आदित्य ठाकरे ने खुलकर यह कहा है कि शिंदे ग्रुप को चाहिए कि वो बिल्कुल इलेक्शन लड़ें, इस्तीफा दे दें, फिर सबको अपनी औकात समझ में आ जाएगी।
आइए इस वक्त उत्तर प्रदेश से हमारे लखनऊ से रिपोर्टर फैजान इलाही ने बताया कि लखनऊ में जो एक मशहूर होटल है, होटल लेवाना सूट्स, जिसमें 5 सितंबर को आग लगी थी और 2 महिलाओं समेत 4 अफराद की मौत हो गई थी, 8 लोग जख्मी हुए थे। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। फैजान इलाही ने बताया कि 19 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती राजधानी लखनऊ में वाक़े लेवाना सूट्स आग की जांच रिपोर्ट में लापरवाही के खाती पाए गए महकमे दाखिला और दमकल डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ महकमों के तकरीबन 19 अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। और इन तमाम पर जिन पर कार्रवाई के आदेश दिए गए उनमें सुबुकदोश अफसरान भी शामिल है जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने इस होटल को मुख्तलिफ सिक्योरिटी मेयारात पर पूरा उतरने की मंजूरी देने में संगीन लापरवाही का मुजाहरा किया था। यानी जो अफसरान रिटायर हो गए लेकिन अपने जमाने में उन्होंने इस होटल को मंजूरी दी थी कि एकदम फुलफिल है, सिक्योरिटी एकदम बेहतरीन अंदाज में, तो वो लोग भी बाकायदा इस कार्रवाई का निशाना बन रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही बिल्किस बानो मामले को लेकर। आप जानते हैं कि बिल्किस बानो मामले को लेकर बीजेपी पर पूरी दुनिया थूक रही है और क्योंकि रेप करने वालों को बीजेपी सरकार ने आजाद किया और उसी दिन मोदी जी लाल किले की फसील से बड़ा झूठ बोल रहे थे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का, और उसी दिन रेप करने वालों को, कत्ल करने वालों को गुजरात में आजाद किया गया, माफी दी गई। तो इसको लेकर बीजेपी पर पूरी दुनिया थूक रही है। लेकिन अब खबरें आ रही है कि बीजेपी की तर्जुमान है शाजिया इल्मी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, मजमून लिखा, जिस पर वो विश्व हिंदू परिषद पर इल्जाम लगा रही है कि विश्व हिंदू परिषद बाकायदा बीजेपी को बदनाम करने की साजिश कर रही है और बिल्किस बानो इस्मत दरी केस के कसूरवारों का एहतराम करने की मुहिम चला रही है। यानी वीएचपी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि पार्टी को यह क्लियर करना चाहिए कि वो अपने तर्जुमान के ख्यालात की हिमायत करती है या नहीं। तो खैर शाजिया इल्मी के बयान से एक नया तनाजा विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी में फिर छिड़ गया है। दाद खाज खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।